شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ میرے تمام عزیز دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اور آب حیات کے تمام سٹوڈنٹس کو شالوم، جے مسیح کی، اور جتنے لوگ اس پروگرام ممکن ہے کہ تعلق سے جمع ہوئے ہیں، ان سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو ایک سٹوری سنانا چاہتا ہوں، اور وہ کہانی بڑی خوبصورت ہے کہ ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ایک دریا تھا جس کے وہ کنارے کنارے جا رہی تھی۔ کبھی تو وہ بھاگتی تھی اور کبھی کبھی وہ پانی کے اندر اتر جاتی تھی۔ میں نے اس کو پوچھا کہ تو پانی کے اندر کیوں اترتی ہے؟ کہتی ہے کہ میں نہیں بتاؤں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے نہیں میں نہیں بتاؤں گی، لیکن اس کی نظریں ایک سائڈ پہ جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی، اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس پانی میں چھوٹے چھوٹے مگرمچھ بھی پھر رہے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے مگرمچھ ہیں اس میں، تو اس سے لگتا ہے کہ اس میں بڑے بھی ہوں گے۔ تو کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہتی ہے ڈر کی بات نہیں ہے، اس ٹوکری میں جو پانی میں بہتی جا رہی ہے اس میں میرا بھائی ہے۔ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ ایک چھوٹی سی بچی کبھی پانی کے اندر جاتی ہے، کبھی پانی سے باہر آتی ہے، کبھی ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہے، پانی بڑا تیز چل رہا ہے اور اس پانی کے اندر مگرمچھ ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ اس ٹوکری کے اندر میرا بھائی ہے۔ تو میں نے کہا تیرا بھائی اس ٹوکری میں کیسے آ گیا؟ کہتی ہے کہ حالات نے اس کو اس پانی میں رکھنے پر مجبور کر دیا ہے، اور میں اس کو بچاؤں گی۔ یہ ممکن ہے کہ میں اس کو بچاؤں گی۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مگرمچھ ہیں اس میں۔ کہتی ہے میرا پیار ان مگرمچھ کے بچوں سے زیادہ ہے میرے بھائی کے ساتھ، میں اس کو بچاؤں گی۔ اور میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو میرے دوستو وہ ہنس کے بولی کہ میرا نام ہے مریم، اور جو پانی میں بہتا جا رہا ہے اس کا نام ہے موسیٰ، یہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہارے کتنے بہن بھائی ہیں گھر میں؟ کہتی ہے ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ ایک مجھ سے چھوٹا ہے بھائی، اس کا نام ہے ہارون، اور یہ سب سے چھوٹا ہے جس کا نام موسیٰ ہے، اور یہ پانی میں بہتا جا رہا ہے۔ آخر کار وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی اور اس کو آخر کار بادشاہ کے محل کی طرف لے گئی، جہاں پر وہ شہزادہ بن گیا۔ آپ سب جانتے ہیں موسیٰ کی سٹوری کو۔ مریم پہلی اپنی قوم کو بچانے والی، اپنے خاندان کو بچانے والی، اپنے خاندان کی فکر کرنے والی لڑکی نظر آتی ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مگرمچھ کی پرواہ کیے بغیر تیز پانی دریائے نیل کے تند پانی سے ڈرے بغیر اس نے اپنے بھائی کو بچا لیا، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے، تو اس نے ممکن کر دکھایا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکی نظر آتی ہے۔ نہ صرف مریم نے اس کو بادشاہ کے محل تک پہنچایا، بلکہ محل سے پھر وہ واپس اپنے گھر لے آئی، اپنی ماں کی گود میں دے دیا اس کو، اور اس بچے نے اپنی ماں کی گود میں پرورش پائی۔ وہ بڑا ہو کر موسیٰ بن گیا، 40 سال اپنی قوم میں رہا، 40 سال اس نے اپنی ماں کی گود سے، اپنے لوگوں کی قربت سے بہت کچھ سیکھا، اور آخر کار وہ 40 سال بیابان میں تجربات سے سیکھتا رہا، خدا سے سیکھتا رہا، اور پھر تیسرے پیریڈ میں اس نے اپنی قوم کو 40 سال رہنمائی دی اور اپنی قوم کو بچا لیا۔ اس
जो बचाई हुई कौम थी, उसमें फिर एक और लड़की नजर आती है और उसका नाम है दबूरा। दबूरा एक कमाल लड़की थी। मरियम ने अपने भाई को बचाया और भाई ने अपनी कौम को बचाया और कौम ने फिर एक और लीडर लड़की को जन्म दिया, उसका नाम दबूरा था। और दबूरा एक अच्छी बेटी थी, एक अच्छी बीवी रही, एक अच्छी शायरा बनी, एक अच्छी नबिया बनी, एक अच्छी जर्नैल बनी, एक अच्छी माँ बनी और एक अच्छी मुनसफ बनी। कोई मुख्तलिफ मिलाकर 50 चीज़ें इसकी लाइफ में मुनफरिद नज़र आती हैं और उनमें 15 नुमायाँ हैं। और ये है, इसका नाम है दबूरा, जो अपनी कौम के लिए लड़ी, अपने ख़ानदान के लिए लड़ी, अपने बच्चों के लिए लड़ी, अपने हस्बैंड की फेवर में खड़ी हुई और अपनी कौम को नबिया होने की सूरत में आगाही देती रही। जर्नैल होने की हैसियत से उसने उनको स्ट्रेटजी दी और फिर जो वो उसने कौम तैयार की, उसमें एक और खूबसूरत लड़की तैयार हो गई और वो है माँ मरियम, मुकद्दसा मरियम, जिसने मसीह खुदावंद से पहले अपनी कुर्बानी दी। अक्सर हम मसीह खुदावंद की कुर्बानी को देखते हैं, अक्सर हम खुदा की कुर्बानी को देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, लेकिन बेटे को लेने के लिए मरियम ने अपने आप को पेश कर दिया। 14 साल की लड़की जो नहीं जानती कि उसके साथ आने वाले दिनों में क्या होगा, वो मरने के लिए तैयार हो गई कि यहूदी उसको संसार कर देंगे। उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मामले आने वाले हैं, बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं, लेकिन उसने अपने आप को पेश कर दिया कि मैं तैयार हूं, मेरे साथ जो खुदा की मर्जी है वही हो। उसने फरिश्ते को जवाब दिया कि तेरी बंदी के साथ वैसा ही हो जैसा तू चाहता है। उसने अपने आप को पेश कर दिया। उसको पता था कि यहूदी उसे संसार कर देंगे, उसको पता था उसकी मंगनी टूट जाएगी यूसुफ से, उसको पता था उसके घर वाले उसको बाहर निकाल देंगे, उसको पता था कि वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकेगी, लेकिन उसने खुदा की मर्जी को मानने के लिए लब्बैक कहा। एक हमारे मुल्क में बड़ा मशहूर नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मरियम ने कहा लब्बैक ए यहोवा खुदा, लब्बैक ए यहोवा खुदा, लब्बैक ए यहोवा खुदा। और जब उसने कहा लब्बैक ए यहोवा खुदा, तो यहोवा खुदा ने इंसानी सूरत में मरियम के बतन से जन्म लिया और उस जन्म का नाम यस्सु रखा गया। और जब उस यस्सु का नाम लोगों ने पहचाना कि ये है वो जो निजात देने वाला है, तो वो यस्सु की फॉलोअर में एक बदकार औरत, जिनाकार औरत, माशरे की रद्द की हुई औरत, जिसको कोई पसंद नहीं करता, जो अकेली रहती थी, सोचती थी कि मैं तो बिल्कुल निगलेक्ट की गई हूँ, मुझे कौन पसंद करता है, मुझे तो हर कोई बुरी नज़र से देखता है। लेकिन वो यस्सु के पास जब आई तो यस्सु ने उसको कहा कि तू अपने इस मैले कुचैले नापाक गंदे ख्यालों में भी कह सकती है लब्बैक यहोवा खुदा, लब्बैक। जब उसने कहा कि लब्बैक यहोवा खुदा, तो उसने जैसे ही उसने कहा, रूहुल कुदस मरियम पर नाज़िल हुआ और मरियम यीशु मसीह की शागिर्दा बन गई। और उस मरियम ने मसीह खुदावंद की कुर्बानी के बाद माँ मरियम के साथ, मुकद्दसा मरियम के साथ मिलके कोड़ी बच्चों को, कोड़ी लोगों को संभालने का इरादा किया और उनके लिए एक ऐसी जगह बनाई, ऐसी अमाजगाह बनाई जहाँ पर वो उनको खाना देती थी, संभालती थी। जैसे आजकल कोरोना वाले लोगों के पास
उसके घर वाले लोग भी नहीं आते। यहाँ तक कि जो करीबी लोग हैं जिनको कोरोना नहीं भी है, अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो उसके घर वाले उसको कहते हैं तूने घर में नहीं आना, और अगर कोई स्कूल में काम करता है तो स्कूल वाले कहते हैं तुमने स्कूल नहीं आना। जहां जहां पर भी है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, रिश्ते क्लोज हो गए, ताल्लुकात टूट गए। लेकिन मगदलीनी ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाया। उसने मरियम मूसा की बहन के साथ मिलकर कहा यह मुमकिन है कि मैं इन कोड़ियों को बचाऊंगी, मेरा ये इरादा है कि मैं इन कोड़ियों को बचाऊंगी। उसने इरादा कर लिया और कहा यह मुमकिन है कि मैं इनको बचाऊंगी, और उसने बचा लिया। इस एंड पे मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप में कितनी बहनें हैं जिनके भाई नशे में बहते जा रहे हैं और दरिया नील के तेज पानी में वो रुड़ते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं। कोई है जो मरियम की तरह उनको खींच निकाले, या वो हिम्मत हार चुके हैं कि ये नामुमकिन है। लेकिन बाइबल कहती है कि ये मुमकिन है। मरियम कहती है मूसा की बहन ये मुमकिन है, माँ मरियम कहती है ये मुमकिन है। लब्बैक यहोवा खुदा लब्बैक। मगदलीनी कहती है कि ये मुमकिन है मैं कोड़ियों को बचाऊंगी। दबूरा कहती है ये मुमकिन है कि मैं अपनी कौम की जर्नल बनूंगी, उनको बचाऊंगी, उनके लिए लड़ूंगी। हमारे नौजवान, आज की नस्ल के नौजवान लड़के और लड़कियां कितने हैं जो मूसा की तरह बाहर निकलते हैं, कितने हैं जो मरियम की तरह बाहर निकलते हैं, कितने हैं जो नहीं डरते इन जो मगरमच्छ हैं उनसे, नहीं डरते कोरोना की बीमारी से, एहतियात करते हैं लेकिन डरते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि उनके अजीज बच जाए, उनके ख़ानदान के लोग बच जाए, उनकी नस्ल बच जाए। क्या उस वक़्त उठेंगे जब बहुत सारा खराब हो जाएगा, बहुत कुछ खराब हो जाएगा? जैसे कि आरजू की बात पिछले दिनों में बड़ी जोरों पर थी। आरजू इस एरिया में नहीं गई, आरजू खुद इस बदी में नहीं गई। आरजू का इतना कसूर नहीं है, ना उस शख्स का इतना कसूर है जिसने आरजू के साथ निकाह किया। यह कड़वी बात है, उसका कसूर नहीं है। यह कसूर है आप लोगों का, जो आप अपने दाएं बाएं किसी को चाचा, किसी को मामा, किसी को फूफा, किसी को मासी, किसी को कोई रिश्ता, कोई किसी के साथ किसी तरह की दोस्ती, और जब वो घरों में आते हैं तो आपकी खूबसूरत बेटियों को, आपके खूबसूरत बेटों को, आपकी खूबसूरत औलाद को फिर आरजू का लबादा पहना देते हैं। इससे पहले कि बहुत सारी लड़कियां आरजू बन जाएं, आप देखें सवाए अपने बाप पर, सवाए अपनी मां पर किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। ये ताए, चाचे, मामे, नाने, दादे, इधर उधर के रिश्ते बने बनाए ये आरजुओं को जन्म देते हैं। अपनी बहन देखे कौन सी मरियम है जो मूसा को मगरमच्छ के मुंह से बचाती है, कौन सी बहन है जो उसको बादशाह के महल तक पहुंचाती है, कौन सी बहन है जो महल से, गैर अकवाम के महल से मूसा को अपनी मां की गोद में लेके आती है। या आप समझते हैं कोई बात नहीं, वो तो अब महल में है, वो तो आराम में है, वो तो सब कुछ उसके लिए इजी चल रहा है। लेकिन ये देखे वो महल गैर अकवाम का है, वो फिराउन का महल है, वो फिराउन की गोद में चली गई है। आपके कितने बेटे बेटियां फिराउन के महल में पल रहे हैं और किसी को परवाह नहीं कि उनको वापस लाकर मां की गोद में दिया जाए। कोई ऐसी दबूरा तैयार नहीं हो रही जो अपनी कौम के लिए फाइट करे। कोई ऐसी मरियम तैयार नहीं हो रही जिसको इस बात का इल्म है कि मेरे वसीला से
एक निजात दहिंदा आएगा, मैं निजात दहिंदा तैयार करूंगी। यस्सु की परवरिश माँ मरियम ने की है। यस्सु इवन बपतिस्मे तक माँ मरियम लेके गई है। आप अपने आप को देखें, आपकी जिम्मेदारियां क्या है, आपका तौर तरीका क्या है, आपका रोजमर्रा का शेड्यूल क्या है। क्या ये मुमकिन है कि आप मिस्र में रहकर भी, आप पाकिस्तान में रहकर भी यही कहें कि हम क्या करें, या ये कहेंगे कि हाँ हम अपनी कौम को बचाएंगे। फिरौन डर गया बनी इसराइल से, उसको पता चल गया कि अब इनकी कौम बढ़ रही है, अब इनकी कौम तालीम की तरफ बढ़ रही है, अब इनकी कौम हुनर की तरफ बढ़ रही है। क्या हमारे लिए कोई हुनर है? आप हुनर सीखना चाहते हैं? आप चाहते हैं तालीम सीखें? आप चाहते, या सब ये चाहते हैं पादरी बन जाए, या सब चाहते हैं कि वो शफा दें, या ये चाहते हैं कि मैं एक लड़की एवेंजलिस्ट, जितनी लड़कियां ब्यूटिशियन का काम करती हैं उनके नाम के नीचे लिखा होता है एवेंजलिस्ट। उनको पता है कि हम एवेंजलिस्ट बनेंगी और साथ ब्यूटिशियन बनेंगी, और फिर हम जो ठग पादरी हैं, जो टुक्कर भोच हैं, जो लोगों को वर्ग लगाते हैं, उनकी बीवियों को 25-25 हज़ार का, 50-50 हज़ार का मेकअप करेंगी, क्योंकि हम उनकी बीवियों को मेकअप करने वाली एवेंजलिस्ट है। एवेंजलाइज नहीं कर रही, वो मेकअप की एवेंजलिस्ट है। इसलिए निकलिए इन बातों से, निकलिए मिस्र की गुलामी से, निकलिए पादरियों की गुलामी से, और मसीह के पीछे कहें लब्बैक यहोवा खुदा, लब्बैक लब्बैक यस्सु नासरी, लब्बैक। तो फिर आपको एक सिमत मिल जाएगी, आपको टारगेट मिल जाएगा। वरना ये पादरियों वाला काम बड़ा आसान है, शफा का डीपू बड़ा आसान है, चर्च बनाना, ये ऐसी चर्च एक ऐसी बकरी बना। यीशु मसीह ने बाइबल में कहां पर कहा है कि चर्च बिल्डिंग्स बनाओ? यीशु मसीह का चर्च, मैं उसको कहता हूं मुबारक चर्च। हमने इधर यूरोप में भी शुरू किया है मुबारक चर्च, क्योंकि यीशु मसीह का जो आप माफ करें, मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब पढ़ें, वहां पर मुबारक चर्च का इब्तिदा हुई, जिसे कहते हैं पहाड़ी वाज। पहाड़ियों पर चर्च का आगाज कर दिया। जो चर्च कहते हैं जो क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, उसको चर्च नहीं कहते जो फलां के फॉलोअर हैं। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये इनका आजकल नेट है, ये माफिया है, ये खुदा के खादम नहीं है, ये माफिया हैं। अगर कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो इनके बड़े सारे, जैसे यसाया की किताब में लिखा है कि वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंकना पसंद नहीं करते। इन्होंने बहुत सारे कुत्ते रखे हुए हैं। जैसे ही आप इनके खिलाफ बोलेंगे या इनके अगेंस्ट बोलेंगे तो वो कुत्ते भौंकेंगे। उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनको कौम की परवाह नहीं। लिखा कलाम मुकद्दस में, यसाया की किताब में, वो टुकड़ा पाते ही, वो रोटी टुकड़ा खाते ही सलामती सलामती पुकारते हैं। यिर्मयाह की किताब में लिखा है हालांकि सलामती है नहीं। इसलिए इससे निकले बाहर और खुदा के ताबे हो जाए, और ऐसे लीडर तैयार करें कि खुदावंद आपकी कौम को बचाए, खुदावंद आपके खानदानों को बचाए। हौसला शिकनी करें, लोगों से सवाल पूछें कि आपने कहाँ से सेमिनरी की है, आपने कौन से बाइबल स्कूल से तालीम हासिल की है, आपका कौन उस्ताद है, और आपके उस्ताद ने कहाँ से तालीम हासिल की है। ना कि ये कि वो खुद बखुद अंदर ही अंदर बैठा अनपढ़ शख्स जिसने खुद किसी जगह से तालीम नहीं ली। मैं गोरों में रहता हूँ, मेरे बच्चे खिदमत करते हैं गोरों में, और ये गोरे भी बड़े वेले हैं, फारग है, इनको कोई बाइबल का पता नहीं। तो इन्होंने जैसे बांदर डिब डिब वो बजाते हैं तो बांदर को नचाते हैं, इन्होंने एक इधर गोरे को बिठा लेते हैं साथ, और टीवी पे दिखाते हैं पाकिस्तानी लोगों को, देखो ये गोरा मेरे साथ बैठा है और इसका मतलब है कि मैं खुदा की तरफ से टेस्टेड हूं। गोया के गोरे का साथ बैठना ये टेस्टिनेशन है, ये आप टेस्ट हो चुके हैं।
आप पता चल चुका है कि आप खुदा के लोग हैं। भाई इस तमाम बदी, तमाम बुरी गंदी फिल्में, तमाम माफिया, तमाम बड़ी बड़ी बुराइयों के मौजद ये गोरे ही हैं। आप कैसे इनको कह सकते हैं ये खुदा के लोगों, ये इनके हाथ में या इनके गले में पकीजगी का कोई परमट है? ये टेस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की। इसलिए हौसला शिकनी करें कि जनाब आपने कहाँ से तालीम हासिल की है, आपका किस सेमिनरी से तलक है, आपका कौन सा उस्ताद है, और जिस उस्ताद से सीखा है वो कहाँ से सीखा हुआ है। तब ये कौम ठीक होगी, तब ये मुमकिन है कि कौम बदल जाए, फिर मुमकिन है खानदान बदल जाए, फिर मुमकिन है कि आपके बहन भाई बदल जाए, फिर मुमकिन है कि आप कह सकें कि लब्बैक यहोवा खुदा, लब्बैक लब्बैक यस्सु नासरी लब्बैक, फिर कौम बदलेगी। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और मेरी एक ही बात है कि हौसला शिकनी करना शुरू कर दें, सवाल करना शुरू कर दें, ताकि जो इस तरह के नाम नहाद बाइबल का आसरा लेके और खुदा की खिदमत का लबादा पहन के ठग हैं, भेड़िए हैं, फ्रॉडिये हैं, इनको शर्मिंदा करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के समझने की तौफीक दे। मुमकिन है कि आप इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं, और ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें चुभें, लेकिन चुभनी चाहिए, क्योंकि जब यूहन्ना मनादी करता था, जब यस्सु मनादी करता था, जब शिगिर्द मनादी करते थे, तो लोगों को उनकी बातें चुभती थी, हथौड़े की मानद लगती थी, क्योंकि खुदा का कलाम नमक की मानद है, ये चुभेगा। जहां पर जख्म है, जहां पर चोट है, जहां पर खराबी है, चुभेगी। और बहुत सारों ने जो अपने छोटे छोटे कतूरे रखे हुए हैं, कुत्ते रखे हुए हैं, जिनको टुकड़ा डालते हैं और वो इनकी बोली में इनके पीछे पीछे भौंकते हैं, वो शोर मचाएंगे, लेकिन परवाह नहीं, हम भी यही कहेंगे जैसे ये नारा भी है, लब्बैक यहोवा खुदा लब्बैक। जय मसीह की। जीते रहे।